So the next point is securing devices and securing SSH. ओके, जो भी हमारा SSH है, SSH इन द सेंस सिक्योर शेल, जो रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन जैसे इन्वायरमेंट में। एक मिनट। या इसको सिक्योर कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ से देखते हैं। सीपीटी पर सेम लैब करना आप लोग, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को अब एंड ऑफ टॉपिक में हम लोग लगभग हैं, तो मैं कुछ एडवांस लैब का एक्सेस दिखाता हूँ। बाकी सारी लैब सीपीटी पर सीसीएनए की हो जाएगी, तो थोड़ा एडवांस एक्सपीरियंस रहेगा तो आप लोग आगे अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लास्ट सेशन हमने जो सेटअप किया था उसी के साथ कंटिन्यू कर लें, या फिर मैं एक मिनट बस दो आप लोग, मैं एक लैब लाइव करता हूँ। Like how to secure devices, how to secure SSH, okay? So मुझे चाहिए यहाँ पर एक ओके लेयर टू स्विच एंड एक मिनट IOL। तो हमारे पास ये मल्टीपल कंपोनेंट है जिसमें मैं एक सेम चीज़ आप सिस्को पैकेट पर भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक अपडेट लिया हुआ है R1। मान लिया कि हमारा एक राउटर है, दिस इज अनदर राउटर R1, and this is my Windows client machine, and this is switch 1, and this is switch 2, and this is server basically. Okay, so I'm going to set up the server here, and this is the simple network traffic. Okay, I'm going to connect the devices using a LAN cable. Okay, so simple, this is the connection. Okay, so this is my server. Okay, so I'm going to assign IP address. So let me assign IP address like 10.0.0.1/8. I'm going to assign this IP address for this interface,
and I am going to assign the 10002 for this interface. And yes, the 192.168.0.1 for this interface using 24-bit subnet ID. Now I'm going to use 172.168.0.1 विथ 16। साइबर सिक्योरिटी की लैब भी मैं यहीं पर करने वाला हूँ, ठीक है। जितना भी आगे का वो रहेगा आपका, मैं एडवांस ऐड कर देता हूँ सिलेबस, तो वो रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक और लाइक आईपी असाइन करता हूँ। दिस इज़ माय सर्वर and server name is for example.com, and the IP address is 172.168.0.50 or 10, and the mask is 255.0.0.0. This is gateway 0.1, this is gateway, and 172.168.0.10, this is DNS. Okay, so simple. These are the configuration for this device. I'm going to set up the IP address and other detail for this machine. Okay, this is Windows client machine. So this is admin basically. Okay, मान लिया कि admin है या simple. This machine address is 192.168.0.2. Okay, simple. And I'm going to configure the SSH. Okay, to secure the configuration basically. Okay. So first of all, I'm going to enable the SSH configuration as per given topology, right? ओके, सारी डिवाइसेस लाइव है। एंड यस, लेट मी शो, एक मिनट। सारी डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मुझे। ये है, ठीक है। तो ये हमारा R3 हमारा ये है, और इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। नो, नो मीन्स बिल्कुल फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन। और डिवाइसेस को सिक्योर करना या एसएसएच को सिक्योर करना, एसएसएच हम लोगों को पता है कि बेसिकली सिक्योर सेल होता है। इट इज़ सिक्योर शेल which is used for a remote connection, means remotely we can access our Cisco devices or other router and switches on terminal. Okay, so it is for remote connection, and it uses TCP port number 2022. Okay, SSH provide encryption level security for remote connection, right? Encryption security means devices can communicate using different types of encryption. Okay, and there is another parallel protocol which is telnet. So as per telnet, we know and we have done the lab for SSH and telnet in starting that telnet provide plain text communication, so it is not secure. So whenever we want to configure any remote service for our Cisco devices over a network, so we need to configure the secure cell level communication for remote or for terminal. Okay, because SSH provide encrypted communication whenever user input any data on terminal for any particular Cisco router, switch, or any other firewall, okay, label devices. So data will be in encrypted format, data will transmit in encrypted format. So any particular man in the middle attack have no permission to read the data value, means they have no permission
to read the exact data. Okay, they can capture, but they don't have like permission, or they have no authority or authorized like person to read the data, like what is the data, what are the information in specific data, because data will be in encrypted format, right? तो डेटा हमारा जैसे नॉर्मल हमारा प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, दिस इज प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट हो गया हमारा 1 2 3, 1 2 3। और इनक्रिप्टेड हमारा हो गया, इनक्रिप्शन जो हमारा हो गया वो हो गया लाइक स्टार हैश 1 डॉट कोलन सेमी कोलन स्टार 1 2, ये ठीक है। ये 1 2 3 मान लो लिखा है, बट ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है। सो बेसिकली टेलनेट सेंड डेटा इन क्लियर टेक्स्ट, so attacker can capture login credential which is given by any user over a network. So telnet provide unauthorized access and can compromise the network, but network admin, server admin can configure SSH which address the encrypted communication over a network. Okay, basically SSH, whenever SSH connect, for example this is router, okay, this is router and this is user, and router has SSH connection and user want to connect with uh, means this PC want to connect with R1, so R1 through SSH. So what is the process, कैसे ये SSH connect होगा? First of all, SSH client connect to the SSH server using TCP port. For example, this is SSH server. Okay. So SSH client request करेगा इससे using TCP port number 2022, using valid authentication, IP address, and username, right? Then server authenticate and prove the public key. सर्वर क्या करेगा, यहाँ से जब ये वैलिड क्रेडेंशियल इनपुट देगा सर्वर के लिए, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर प्रूफ करेगा कि जो भी आइडेंटिटी यहाँ से दी जा रही है पब्लिक की का वो सही है, और ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वेस्ट ये की को एक्सचेंज करेगा। अगर राइट क्रेडेंशियल हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर की एक्सचेंज होगा। ओके, दोनों क्या करेंगे, एक असिमेट्रिक की क्रिएट करेंगे, और यहाँ से यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में होगा। ओके, सो यूज़र क्रेडेंशियल जैसे ही हमारा यहाँ पर इनपुट होगा, इनके बीच में प्रॉपर एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, और ये क्लाइंट जो है वो डेटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा एसएसएच का इंक्रिप्शन लग जाएगा, बिकॉज एसएसएच प्रोवाइड आरएसए और MD5 आर अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन। इट प्रोवाइड AES लेवल इंक्रिप्शन, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, DES लेवल सिस्टम। ओके, इंक्रिप्शन में ये प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन में यूजर नेम पासवर्ड, पब्लिक की, प्राइवेट की, ये सब ऑथेंटिकेशन में प्रोवाइड हो सकता है। एसएसएच बेसिकली हमारा दो वर्जन सपोर्ट करता है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ओके, वर्जन 1 बेसिकली ऑब्सोल्यूट हो चुका है और इनसिक्योर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल लूप होल मिल गए थे हैकर अटैकर को, जिनके थ्रू हैकर अटैकर बहुत आसानी से वर्जन 1 को बाईपास कर सकता था। सो वी कैन नॉट कन्फिगर SSH वर्जन 1। ओके, वी कैन कन्फिगर SSH वर्जन 2, एंड ये वर्ल्ड वाइड या वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है SSH वर्जन 2, एंड वेरी वेरी सिक्योर प्रोटोकॉल है। नाउ डेज वी कैन यूज SSH वर्जन 2 फॉर स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरी पर्टिकुलर नेटवर्क environment, right? So SSH configuration is the simple term or the simple task to secure the Cisco devices. Okay, let me show how to do the lab. Okay, for example, this is my Cisco router and this is R3. Basically, I'm going to assign the host name for this router, which is R3, and do right to save the configuration. Okay, simple. Another, it is very very important to rename the host of every मतलब rename the device name,
रीनेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट रीनेम रिमोट प्रोटोकॉल और विदाउट पासवर्ड रिमोट प्रोटोकॉल और ये सब वर्क नहीं करते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर डिवाइस रिकग्नाइजेशन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीनेम द डिवाइस। ओके, तो ये हम कर लेंगे। देन इंटरफेस स्पेस E0/0, आई एम गोइंग टू असाइन IP एड्रेस फॉर E0/0 लाइक 10.0.0.1 विथ मास्क, एंड देन नो शट डाउन टू टर्न ऑन द इंटरफेस। Then E0/1, I'm going to assign the IP address for E0/1, which is 192.168.0.1 with subnet mask and simple no shutdown, and then exit. And interface configuration has done for R3. Okay. Now and one more thing, while configuration of real device image, it is very very important to disable the telnet before configuration of SSH, otherwise SSH cannot work. Okay, telnet आपको डिसेबल करना पड़ेगा तो SSH आपका वर्क करेगा, अदरवाइज इस SSH प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, सो we need to configure, we can configure different things. Okay, we can configure, wait, डिजिटल पेन जो है ना, मेरा मैक डिवाइस पर भी इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, आई थिंक दूसरा कोई टैबलेट मुझे बाई करना पड़ेगा, लग रहा है ऐसा। इनका वर्जन फर्मवेयर कुछ अपग्रेड हुआ, क्योंकि एक हफ्ते से बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई एम गोइंग टू कन्फिगर, और वाइल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SSH ऑन एनी सिस्को डिवाइस, SSH ऑन सिस्को, वी कैन कन्फिगर host name. This is the mandatory option while configuration of any remote protocol for Cisco device. And yes, we need to configure domain name. Domain name. This is the recommended part to configure the SSH. And yes, we can configure RSA encryption. RSA for we ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ, तो मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। RSA फॉर की पेयर, बट हम यहाँ पर थोड़ी एडवांस सिक्योरिटी आज इंक्लूड करेंगे SSH के साथ। की पेयर, and then we can use local database, right, local database. And then we can configure virtual terminal, because remote session is virtual terminal. Okay, so virtual terminal configuration. Okay, so to do this particular lab, we need to configure the host name, configure the domain, configure the RSA key, configure the local user, configure the SSH on VTY, and then it is very very important to disable the telnet if there is any telnet connection enable on a specific device. Okay, and in advance we can use like secure or encrypted or like healthy key फॉर बेटर सिक्योरिटी। हेल्दी की का मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके का लॉन्ग पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का साइन सिंबल के साथ और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। ओके, ACL वगैरह की सिक्योरिटी इस्तेमाल कर लें, ACL इस्तेमाल कर लो। ACL अभी लास्ट टाइम कल आपने देखा था, मैं यहाँ पर भी ACL इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब आप कहेंगे ACL तो अभी समझ में नहीं आया है, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मैं ACL अभी पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले वही पढ़ाना चाहिए था, बट कोई नहीं, ACL की जस्ट एक लाइन की कमांड है, अभी पूरा मैं आपको चैप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब करा देता हूँ। सिक्योरिटी जस्ट इसी के बाद स्टार्ट करते हैं। सो मान लिया कि मुझे अपने इस डिवाइस पर इनेबल करना है, तो मैंने जस्ट IP दे दिया और दोनों इंटरफेस और सारी चीज़ें। एंड दिस इज़ विंडोज़ PC, दिस इज़ विंडोज़। ओ, लाइव कर लेते हैं। टिल हम लोग क्या करते हैं, R3 को प्रॉपर कन्फिगर करते हैं। ओके, जैसे
आईपी डोमेन नेम, एक एक नॉर्मल पासवर्ड देना बहुत जरूरी है। सो इनेबल पासवर्ड 1 2 3 4 5। मैं सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ, आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना, 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज मैंडेटरी वाइल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिमोट सेशन। बट ये टेलनेट के लिए ज़रूरी है। बट आप एक रिमाइंडर रखो कि हमें एक पासवर्ड देना होता है, यूज़र नेम चेंज करना होता है। एंड देन आईपी डोमेन नेम, आई कैन असाइन एनी डोमेन नेम लाइक सीखो लाइव। ओके, ये जस्ट एक प्रॉपर्टी, आप इसको इनेबल करेंगे। सो होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम आर रिक्वायर्ड टू जनरेट आरएसए की। ओके, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम बोथ आर रिक्वायर्ड टू जनरेट आरएसए की। जब हम सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट समझना होता है, राइट। एंड वी कैन क्रिएट लोकल यूजर डेटाबेस। ओके, we can create local user database, and we can create local user database with full privilege. Okay, so what is the privilege level in Cisco ecosystem? Let me show. Privilege level in Cisco यूजर नेम, सिंपल इसके साथ देखते हैं। तो यहां पर आपको प्रिविलेज लेवल मिलता है। ओके, सी प्रिविलेज लेवल, लेवल 1 जस्ट बेसिक रीड ओनली कमांड। जो रीड ओनली कमांड है, अगर कोई यूजर आप बनाते हो और उसको प्रिविलेज लेवल 1 देते हो, तो वो आपके राउटर पर या स्विच पर अगर रिमोट एक्सेस लेता है तो वो सिर्फ बेसिक कमांड एग्जीक्यूट कर पाएगा। आप समझ में आया? आप तो अपने राउटर पर कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट रिमोट एक्सेस आप दो लोगों को दे रहे हो, दो सेशन क्रिएट करके। एक को एसएसएच, मतलब एक सेशन इधर चल रहा है और एक सेशन मान लिया सेशन 2 इधर चल रहा है। इधर आपने यूजर जो क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है लोकल, जिसका प्रिविलेज लेवल 1 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राउटर की मॉनिटरिंग, स्विच लाइक रिप्लाई, नॉर्मल चेकिंग कर सकता है। और एक को आपने प्रिविलेज लेवल 15 दिया हुआ है, जब सबसे हाई होता है ये फुल एक्सेस, जो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। तो ये यूजर सारे मॉडिफिकेशन कर सकता है आपके राउटर या डिवाइस पर, बाकी ये नहीं। जीरो जो होता है एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड होता है, और ये ओनली इनेबल डिसेबल लॉग आउट और ये सब करने के लिए होता है। और बाकी 2 से जो 14 तक यूजर होते हैं, मीन्स 2 to 14 होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिफाइन विच कमांड आर अवेलेबल एट दीज लेवल ऑफ यूजर। ये आपको डिफाइन करना होता है, एज एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करना होगा कि आप इसको कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। And these are the configuration parameter. Okay, so let me copy these all things and let me add. ठीक है, लेवल 1। ओके, डन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, या ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करते हैं। तो मान लिया कि मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ और यूज़र को फुल परमिशन देता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट किया यूज़र नेम, जो रिमोट एक्सेस लेगा, मैंने क्रिएट किया एडमिन, और इसका प्रिविलेज मैंने दे दिया, देखो 0 to 15 दे सकते हो, मैंने दे दिया 15 फुल परमिशन के साथ। और मैंने यहाँ पर एक सेक्रेट की कॉन्फ़िगर किया, विच इज admin@123। ध्यान देना मैंने क्या यूजर नेम और क्या पासवर्ड दिया है। दिस इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्लियर है? याद रखना आप लोग। एंटर करते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक आरएसए की जनरेट करते हैं टू एनेबल दी एसएसएच। So we can use crypto key generate RSA, RSA
ये हमारे एल्गोरिदम है जो 3 साइंटिस्ट RSA से उनका नेम होता है, इन्होंने डिज़ाइन डेवलप किया था। तो इसको इनेबल करेंगे। एंड मॉड्यूलस की जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम का मतलब होता है हायर सिक्योरिटी। सो वी कैन स्टार्ट इन बिटवीन 3602 4096। 4096 इज हायर, सो प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी। सो आई कैन यूज 2048 और मोर देन दिस। ओके। बट अगर मुझे 2048, मैं 2048 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये 2048 का यहाँ पर इनेबल कर देगा फॉर बेटर सिक्योरिटी। नाउ यू कैन सी SSH हैज़ बीन इनेबल्ड। ओके। एंड देयर इज SSH 1.9 हैज़ बीन इनेबल्ड। ओके। सो आई कैन यूज, if you want to key sorry, if you want to check your crypto key, so you can type do show crypto and key and my pub key RSA, enter. So you can see this is your key. Okay, this is your public key. Okay, so key was generated at particular this time, and the key name is r3.secollive.com.server. That's why the domain name and the router name, means host name, is required configuration for RSA key generation. Without that it is not possible. Default के साथ ये जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट सबका राउटर 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 होता है, स्विच 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 होता है, राइट? क्लियर है? समझ में आया? नाउ यू कैन सी दीज आर द डिटेल अबाउट योर RSA और encryption key. Okay. Now next thing, I'm going to enable the SSH version 2. So I'm going to enable IPSSH version 2, and for better security. If you want to check these like SSH, so IPSSH and see. What about version algorithm? So here you can see, ये बड़ा टफ है पढ़ना यार, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। ये ऊपर है। Now we have SSH version 2, and these are the details. Okay, these are the details, and these are the encryption key detail. Okay, and many other details. Now you can enable virtual terminal as per the step. Okay, so line space VTY space 0, I want to allow at a time 4 user who have or who can access SSH for this router. Okay, and then login local, enter, and then transport input SSH, and then enter. I'm going to allow the like time, time like uh, yes, yes, लाइक एक आइडल पर्टिकुलर टाइम आउट होता है कि टाइम आउट हमारा कितनी देर का होना चाहिए, 5। आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइम आउट इन मिनट। तो पर्टिकुलर मैंने दे दिया इतने से इतने मिनट, 0 to 3 5 7 9 1 मिनट तक कर सकते हो, 5 मैंने दिया। उसके बाद कह रहा है टाइम आउट इन सेकेंड, 0 सेकेंड। 5 मिनट तक अगर हमारा कोई SSH एक्सेस नहीं लेता है या एक्सेस लेकर छोड़ दिया है, तो हमारा टाइम आउट टाइम इतना है। एंटर कर दिया। नाउ एग्जिट, एंड दैट्स ऑल। ओके। नाउ यू कैन यूज, इफ यू वांट टू लाइक if you want to set कि आप हर 5 मिनट पर वो लॉग आउट हो जा रहा है कुछ, और मुझे टाइम वो कुछ करना है, तो आई थिंक IPSSH एंड टाइम आउट आप यहाँ से दे सकते हो। SSH टाइम आउट इंटरवल 5 मिनट, अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप 1 से लेके 120 सेकेंड के बीच में दे सकते हो, या और कम हो जाएगा यार ये तो, बट इतना ठीक है, इतना ठीक है। ओके।
सो IPSSH, या तो मैं दे देता हूँ टाइम आउट, और मैं दे देता हूँ 1 या 60 एंटर। चलो, IPSSH, if you want to enable authentication retries, so you can enable in between 0 to 5. Like how many attempts do you want to allow for authentication? For example, if someone retry the 2 time 3 time, है ना, कितनी बार उसको अटेम्प्ट मिले, तो बाय डिफॉल्ट तो ना वो करके हम क्या कर सकते हैं, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रूट फोर्स अटैक, सो आई कैन अलाउ ओनली 2 और 3 अटेम्प्ट। अगर 3 अटेम्प्ट हमारा गलत कोई करता है तो हमारा वो कनेक्शन उसके लिए इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट और रिट्राई विल प्रोटेक्ट योर ब्रूट फोर्स लेवल अटैक फॉर SSH ऑथेंटिकेशन, SSH एक्सेस। ओके, क्लियर है? Now, if you want to secure your device more, so you can enable ACL. Like for example, the like for example, I want to allow only 192.168.0.2 to access the router using SSH. So I can create access list, and I'm going to create access list 10, and I'm going to allow using permit option, and I'm going to allow the specific IP address which is 192.168.0.2 and hit enter. So, so only this particular PC have access of particular target, okay? And then you can enable line VTY 0 to 4 enter, and then access class 10. 10 means list, एंड इट इज फॉर इनसाइड और आउटसाइड। ये कैसा यूजर है? इन यूजर है, इनसाइड है तो इन दे दिया, दैट्स ऑल, एंड देन एग्जिट। ओके, ओनली द स्पेसिफिक आईपी एड्रेस मीन्स 192.168.0.2 have access of SSH. Okay, now you can just save the all configuration using write command. Either you can type do write, or use you can just do copy running to startup, कुछ भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड देन फाइनली मैं अपने पीसी पर आऊँगा विच इज़ विंडोज़। सो दिस वन इज़, ये रीस्टार्ट वो बंद हो जा रहा है, इसकी जगह विंडोज़ 7 ले लें क्या? चलो छोटा सा लैब करते हैं। अरे आज पता नहीं चला समय। क्यों? आप लोग भी बहुत शांति से पढ़ रहे हैं, क्या बात है? कुछ स्पेशल है आज? हेलो? हाँ सर। बहुत शांत होकर सब लोग, मैं भी फ्लो फ्लो में समझा नहीं कहाँ से कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल SSH एक्सेस लेते हैं। अब SSH एक्सेस लेने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, पीसी पर टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, जो कि लिनक्स वगैरह में डायरेक्ट टर्मिनल ओपन होता है, बट विंडोज़ के अंदर आई थिंक CMD है। और लेट मी ट्राई, इज दिस पॉसिबल टू यूज SSH स्पेस, एंड यूज़र नेम मैंने क्या दिया था? एडमिन, क्या दिया था? याद है आप लोगों को? एडमिन, और पासवर्ड मैंने दिया था admin@123। आप लोगों के भरोसे नहीं कुछ करने वाला है। तो admin@, but before SSH, doing SSH, we need to set up the IP address for this device, right? So this is the network adapter. I'm going to set up an IP address as per the given on topology. So the IP address is 192.168.0.2, because यही बस allow है 0.1, and no need to assign DNS. Now I can ping
I can ping with router. So let me try ping 192.168.0.1, सॉरी 13 हो गया 0.1। यस, रिप्लाई आ रहा है। सो एस एस एच स्पेस एडमिन एट द रेट 192.168.0.1, एंटर। admin at the rate 192.168, it is not possible to access, okay। सो ये टर्मिनल हमें यूज़ करना पड़ेगा, इधर पार्सेल इस्तेमाल करें, बट यस हमारे पास पुट्टी सॉफ्टवेयर है, पुट्टी के थ्रू एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमें एस एस एच को सेलेक्ट करके एस एस एच वर्जन 2 सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर वर्जन 2। एंड अगेन हम सेशन में आएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एस एस एच, और यहाँ पर आईपी एड्रेस देंगे 192.168.0.1, और फिर हम यहाँ से करेंगे ओपन। यहाँ पर देखो, की की जो हमारा है वो यहाँ पर RSA 2 इंक्रिप्शन की यहाँ पर वर्क कर रहा है, और जो कि हमारा यस करते ही, और उसका जो यूज़र नेम है वो एडमिन है, एंटर करेंगे, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए admin@123 एंटर। ये हमारा राउटर एक्सेस हो गया। दिस इज़ द सिंपल थिंग। और अगर मैं इसका चेंज सेशन, और सेशन में जो मैं अपीयरेंस ऐसे ही रहने देते हैं, लॉगिंग सेशन में टर्मिनल, फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इसका इंक्रीज करता हूँ। इसको सेव करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ से जो भी कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ, देखो क्लियर है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये एसएसएच का एक्सेस हो गया। तो सिक्योर एक्सेस हुआ, सारी चीज़ों के साथ हुआ। कुछ देर अगर हम लाइक थोड़ी देर तक इसको आइडल मोड में रखते हैं तो ये हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आई थिंक 60 सेकेंड या समथिंग कुछ मैंने दिया है। सो स्पेस IP space SSH, this will display the like RSA encryption algorithm and all right, जो भी इंफॉर्मेशन है ये। सो स्पेस यूजर से अगर मैं चेक करूं, सो स्पेस यूजर, यूजर्स, तो हमें बता देगा कि हमारे कितने सारे पर्टिकुलर यूजर यहाँ पर हैं। तो एक एडमिन नाम से यूजर है जो कि एक्सेस कर रहा है, ओके। एडमिन नाम से यूजर है और एक्सेस कर रहा है। IP एड्रेस उसका ये है ना, आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं शो स्पेस और शो स्पेस मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और लिमिटेड अगर कुछ जैसे सेक्शन VTY का ओनली चेक करना चाहता हूँ तो वो मैं देख सकता हूँ, है ना। जो भी है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH है या नहीं है। अगर यूज़र नेम इंक्लूड करके मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंक्लूड शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज़र नेम, या INC यूज़र नेम होता है। ये है यूज़र नेम एडमिन, प्रिविलेज 15 है, सेक्रेट की इसका देखो सेक्रेट की है, सेक्रेट मैंने दिया है ना। तो ये एक तरीके का सिक्योर पासवर्ड और ये सारी चीज़ें इनेबल करता है, ओके। करेंटली मैं अपने इसी पर्टिकुलर सर्वर को एज अ TFTP सर्वर भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। TFTP सर्वर बनाने वाला हूँ। तो TFTP सर्वर के लिए कोई भी एक TFTP एप्लीकेशन आप अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर लेंगे, जैसे TFTP फ्री डाउनलोड और FTP फ्री डाउनलोड। TFTP, FTP जो भी आपको लेना है, देखो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर है। ये देखो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TFTP 32, ये वाला मेरे सिस्टम पर देखो यहाँ है, ये है ना, अलाउ करते हैं। और ये TFTP फायरवॉल का एक्सेस ले लिया, और इसका जो IP एड्रेस हम सेट कर देते हैं अपने सर्वर का। अब जो भी मैं अपने
राउटर से कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सेंड करूँगा। पुट्टी मैंने हटा दिया। मेरा ये है ना, नहीं ये नहीं, R3 से मान लिया कि मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन सेंड करता हूँ। मैं इसी पीसी से ही, पुट्टी से दोबारा से SSH एक्सेस लेता हूँ 192.168.0.1 का। एंटर करते हैं एडमिन और पासवर्ड, राइट क्लिक करके एंड चेंज सेटिंग, एंड थोड़ा सा टर्मिनल जूम कर लेते हैं। अप्लाई ओके, एंड सेशन डिफ़ॉल्ट सेव अप्लाई। मैंने यहाँ से क्या करना है, कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशन सेंड करना है इसको, और मैं चाहता हूँ कि वो इस TFTP पर हो, जैसे TFTP का रियल देखो छोटा सा एप्लीकेशन डाल दिया, और हम यहीं से क्या कर सकते हैं, सिंपल शो या सिंपल कॉपी रनिंग डेटा ऑन TFTP। एंटर करते हैं। कहाँ पर भेजना है, 0.2 पर। किस नाम से भेजना है, हेलो। एंटर। देखो यहाँ पर एक फाइल आ जाएगा। क्या कह रहा है, ये एरर दे रहा है 0.2, यही तो है, परमिशन डिनाइड। एक मिनट, मैं config डॉट txt, आई डोंट नो ये परमिशन डिनाइड क्यों कह रहा है। तो राउटर से हम एक बार इसको सेंड करते हैं, बाकी उसको बाद में देख लेंगे। कॉपी रनिंग डेटा टू TFTP, एंटर, होस्ट नेम इज 0.2, एंड देन config फाइल, एंटर। परमिशन डिनाइड, वाई, ये इशू नहीं आता है, जस्ट हम ये, आई डोंट नो ऐसा क्यों ये आ रहा है, बट ऐसा आता नहीं है। जस्ट हम यहाँ से राइट कमांड एग्जीक्यूट करें तो कन्फिगर हो जाता है ना, मतलब सेव हो जाता है। तो कॉपी TFTP रनिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती है। आई थिंक परमिशन डिनाइड, मे बी देर इज सम प्रॉब्लम विथ इन विथ फायरवॉल एंड ऑल, कुछ ऐसा तो नहीं है, फायरवॉल वगैरह का कोई इशू है, लेट मी चेक। सो दिस इज फायरवॉल, so yes there is firewall. So let me turn off the firewall, and yes, now let me try. Okay, let me try again. So I'm going to copy the TFTP 0.2, and then file name is file txt, enter. Again same problem. Let me try with router, copy running data to TFTP, enter, 0.2. सो मे बी देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो फायरवॉल का इशू नहीं है, बट कुछ और हो सकता हो। तो सिंपल ये हमारा एक प्रोसेस है, जिस पर हम ये कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो TFTP इनेबल कर सकते हैं, इसका पोर्ट नंबर UDP69 होता है, या फिर FTP इनेबल कर सकते हैं। FTP अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो FTP के लिए सिंपल हम लोग किसी भी ऐसे सर्वर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इसको इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये फायरवॉल अभी के लिए मैं जस्ट लाइव करता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ऑफ कर देंगे, ऑन कर लेते हैं। रेस्ट हमारा डेटा यहाँ पर आता रहेगा। तो एक और हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे इस राउटर का है। और उस राउटर पर जाने से पहले मैं अपने इस राउटर को, जो कि राउटर 3 है, यानी फर्स्ट राउटर है, इसको राउटर एंड EIGRP 10 और नेटवर्क 192.168.0.0, एंड वाइल्ड कार्ड मास्क पूछ रहा है, नहीं देंगे। नेटवर्क 10.0.0.0 एंटर करते हैं, एंड डन। उसके बाद डू राइट करते हैं ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक सेव हो जाए।
एंड फाइनली मैं अपने राउटर 2 पर आ जाता हूँ, यानी कि जो हमारा दिस वन, डिवाइसेस को सिक्योर करना और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एक रूट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ दोनों राउटर के बीच में। तो जस्ट इनेबल कॉन्फ टी होस्ट आर फोर R4 and then do write interface E0/0 and then IP address is 10.0.0.2.255.0.0.0. No shutdown. Exit. Interface is 0/1. IP address 172.168.0.1 with mask. No shutdown. Exit. Okay. And yes, you can configure do write, but before doing do write, you can type router space EIGRP and then 10 जस्ट नेटवर्क। आपको ये जीआरपी का भी लैब यहाँ पर करा दिया, और मैंने सिंपल यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करके एक राउटिंग इनेबल किया है। राउटिंग में आप स्टैटिक कर लेना, मैंने पढ़ाया है, फ्लोटिंग स्टैटिक या जो भी करना होगा, रिप भी बता दिया था, ओएसपीएफ कर लेना, बट राउटिंग कर लेना है। अब मैं अगर इस पीसी से डेटा सेंड करता हूँ, इस पीसी से पैकेट सेंड करता हूँ राउटर 2 के लिए, क्या पॉसिबल है? तो पिंग स्पेस 10.0.0.2, हाँ जा रहा है, ठीक है। और मैं ये जो सर्वर है ना, दिस इज सर्वर मशीन विंडोज सर्वर, सो दिस इज विंडोज सर्वर। डिस्कनेक्ट कौन हो रहा है बार बार? लॉगिन करते हैं इसको। तो यहाँ पर भी हमारा TFTP सर्वर देखो ये आ चुका है, ठीक है, ये TFTP सर्वर है। और इस सर्वर को मैं आईपी देता हूँ 172.168.0.10, ठीक है। और इस सर्वर को मैं एज अ डोमेन सर्वर भी आगे प्रमोट करूँगा, कर दूंगा। IIS FTP बहुत सारे लैब इस पर होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक लैब इनेबल करता हूँ, सॉरी, इसको एक आईपी देता हूँ 0. कितना है? 10 है। 172.168.0.1, 172.10 इसका डीएनएस दिया। नेक्स्ट करते हैं, एंड फाइनली मैं यहाँ से यस करूँगा। इस एप्लीकेशन को मैं दोबारा लॉन्च करता हूँ, TFTP को, और अपना आईपी एड्रेस यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा लेते हैं, सिंपल। और मैं R4 जो है इस पर आता हूँ और कॉपी रनिंग डेटा टू TFTP एंटर 0.10 पर मैं फाइल नेम से सेंड करता हूँ। यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ। देखो यहाँ पर फाइल नेम से ये सेव कहाँ कर रहा है? C ड्राइव के इस लोकेशन पर सेव कर रहा है। बट TFTP हमने क्या बताया है, या हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये वल्नरेबल होता है। कहाँ पर सेव कर रहा है ये? C प्रोग्राम फाइल TFTP 64, C प्रोग्राम फाइल TFTP समथिंग यहाँ पर 64, और ये हमारा फाइल 1 है। राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमारा आ गया, ये है। फाइल को रैप कर लो, ये देखो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। ये एक रियल टाइम लैब की बात हो रही है, रियल टाइम लैब सेटअप यहाँ पर है। और इसको अगर हमें सिक्योर करना है या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या TFTP की जगह हम लोग FTP या फिर SFTP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ तक हमारा IP सर्विसेज का पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट मॉड्यूल होगा, ओके। और सभी को मैं अब एक अपडेट दे देता हूँ, 1 मिनट।